Hello, friends. Hope you all are healthy and safe at home in this pandemic situation. A very warm welcome to all in our first video, which is related to basic concepts of cloud, and I named it Level Zero for Cloud Fundamentals. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेडिशनल डाटा सेंटर. ट्रेडिशनल डाटा सेंटर है क्या एंड व्हाट आर इट्स की चैलेंजेस. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे why we need a technology like cloud. What are the reason to go from traditional data center to cloud? फिर हम देखेंगे some of the key figures for cloud revenue growth, cloud adoption and skills. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे some basic introduction about cloud and its terminologies. Then हम देखेंगे what is the difference between traditional DC model and the cloud model. फिर हम समझेंगे why we should learn cloud and what is our training methodology. Then last is final message and roadmap to the students. So let's start. अभी मैं ये ड्राइंग क्लियर कर दूं. ठीक है. Okay. Now our first slide is what is traditional data center. Traditional data center है क्या? Traditional data center is nothing but it is a facility which is built up by any organization where they have their own network connectivity, they have their own physical servers, storage and databases, and they host their business application on top of this whole physical infrastructure. That is your traditional data center. Okay, now let's understand what are the key challenges of this traditional data center. Okay, सबसे जो मेजर चैलेंज है ट्रेडिशनल डाटा सेंटर में वो है आपका लॉन्गर डिप्लॉयमेंट टाइम. व्हाट इट मीन इज लाइक ट्रेडिशनल डाटा सेंटर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर मैनुअल. सपोज आपको कोई नया सर्वर लगाना है, ठीक है, आपको कोई नया सर्वर लगाना है डाटा सेंटर में, तो आप क्या करोगे, आप पहले एक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्लेस करोगे, उसके बाद वेंडर के पास ऑर्डर जाएगा, वेंडर फिर 6-7 हफ्ते लगाएगा, आपको डिलीवर करेगा हार्डवेयर, उसके बाद आप उस पर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर उसके बाद आपके एप्लीकेशन बिल्डअप होंगी, फिर वो सर्वर प्रोडक्शन में आएगा. So this whole process takes almost 8 to 10 weeks for the deployment, which is very long time for the deployment. That is the first challenge. Okay. Now the next challenge is huge cost. To understand cost, we need to understand two types of cost. First is capex cost, another is opex cost. Now first understand what is your capex cost. कैपेक्स कॉस्ट जो होती है आपकी, वो है आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट. लाइक जो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी सर्वर को, और सर्वर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रोक्योर करने के लिए. और जो आपकी ऑपेक्स कॉस्ट होती है वो होती है आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, विच इज रिक्वायर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हार्डवेयर, मैनेजमेंट ऑफ द हार्डवेयर, and then for the power and cooling of the hardware which you install in the data center. So traditional data center में ये दोनों कॉस्ट ही बहुत ही यूज होती हैं, because you procure a new server, that is your capex cost, and then you have your opex cost in order to maintain that particular hardware and software of that server. Okay. Now the next challenge is shorter life cycle. What it means, shorter life cycle is every hardware comes with specific end of life.
जो आपकी होती है 3 या 4 साल. So after that, organization has to procure new hardware, and then they again need to go with the same approach. They need to go with a longer deployment time. They need to incur huge capex and opex cost due to this shorter life cycle. Now the next challenge is complexity. अब actually organization क्या करती हैं? Organization tend to procure the hardware from different vendor due to costing constraints. What that mean is, उनको जहां से हार्डवेयर थोड़ा सा सस्ता मिलता है, जहां से उनको उनकी कॉस्ट सेव होती है, दे कीप ऑन प्रोक्यूरिंग द हार्डवेयर फ्रॉम डिफरेंट वेंडर. What will happen is, because of multi vendor hardware, it will add lot of complexity inside the data center. So अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा what is our traditional data center and what are its key challenges. Now let's move ahead. अब हम देखते हैं क्लाउड जैसी टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी. वो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट थी जिसको हमारा ट्रेडिशनल डाटा सेंटर पूरा नहीं कर पा रहा था. सो सबसे पहली की रिक्वायरमेंट थी ऑन डिमांड सर्विसेज. व्हाट इट मीन इज, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट शुड बी ऑन डिमांड. मींस on demand means, what it mean is, like you will allocate the resources based on demand. like आज मेरे को 2 सर्वर की डिमांड है, तो ये ऑन अ इमीडिएट बेसिस आपको ये 2 सर्वर डिप्लॉय करके दे दे. ठीक है, अगर मेरी 3 की डिमांड होगी तो 3 डिप्लॉय करके दे दे. दैट मीन्स, और अगर मेरी डिमांड कम की होगी तो ये बाकी के ये दोनों 2 एक्स्ट्रा सर्वर को डिकमीशन कर दे. दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन डिमांड. दैट वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. The next requirement was automation. अब कंपनीज चाहती हैं हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटेड होने चाहिए, एंड इट शुड बी सेंट्रली मैनेज. नॉट इट शुड नॉट बी मैन्युअली manual intensive. So that was the second requirement. Third requirement was your infrastructure should be dynamic and flexible in nature. Okay. And your fourth requirement was your infrastructure should support mobility. Mobility means you can move the servers from one location to another without any downtime. Okay. The last requirement was the scalability, means you can increase and decrease the capacity based on demand. That was one of the major requirement. Okay. So all these requirement demand evolution. So इसी एवोल्यूशन की वजह से हमारा क्रिएट हुआ क्लाउड. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब हम समझते हैं सम ऑफ द की फिगर्स अबाउट क्लाउड रेवेन्यू ग्रोथ. एक्चुअल में क्लाउड जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2006 में, लेकिन जो जो कंपनीज ने इसको इन प्रोडक्शन यूज करना स्टार्ट किया, दैट दे स्टार्टेड फ्रॉम 2010. सो with these figure you can imagine that revenue in year 2010 was just $13 billion, and now it has reached up to 132 billion dollar. Okay, so this is a huge growth. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो क्लाउड है कितना हाई पोटेंशियली ग्रो कर रहा है. ओके जी, now let's talk about cloud adoption by enterprises. इसमें हम डिस्कस करेंगे 4 तरह की फिगर. जो सबसे पहली फिगर है वो है परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम वर्कलोड्स which are running on cloud. Okay, and the second figure is percentage of workloads
where some workloads are running on cloud. Third is percentage of the organization who are still experimenting with the cloud, and percentage of the organization who still planning to use cloud. तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने जो ये सारे फिगर्स हैं वो अलग अलग कलर से डिनोट किए हैं। जैसे मैंने जो मैक्सिमम वर्कलोड है उसको मैंने ग्रे कलर से डिनोट किया है, इसको मैंने लाइट ब्लू से डिनोट किया है, इसको मैंने लाइट ग्रीन से डिनोट किया, और इस फिगर को मैंने जो प्लानिंग टू यूज है इस फिगर को मैंने लाइट ऑरेंज से डिनोट किया है। ठीक है जी। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस में क्या है, ऑलमोस्ट 50% जो ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम वर्कलोड है वो आपका एडब्ल्यूएस क्लाउड पे चल रहा है, और आपका 29% कुछ वर्कलोड है जो एडब्ल्यूएस क्लाउड पे चल रहा है। ठीक है जी। एंड देन 9% आर द कंपनीज हु आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग टू यूज एडब्ल्यूएस क्लाउड, and only 4% are the organization who are still planning to use cloud. ऐसे ही आप अजोर की फिगर देखिए, अजोर में क्या है, 44% of their maximum workloads of the organization are running on Azure cloud, and 32% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कुछ वर्कलोड अजोर क्लाउड पे चल रहा है, और 11% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं टू यूज अजोर क्लाउड, और 5% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दे आर स्टिल प्लानिंग टू यूज अजोर क्लाउड। ऐसे ही गूगल क्लाउड का है, 23% का जो है मैक्सिमम वर्कलोड वो गूगल क्लाउड पे चल रहा है, 26% ऐसा है जिनके कुछ वर्कलोड गूगल क्लाउड पे चल रहे हैं, 23% ऐसे हैं जो दे आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विद गूगल क्लाउड, एंड 8% कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टिल प्लानिंग टू यूज गूगल क्लाउड। ऐसे ही ओरेकल क्लाउड का है, 11% जो है इनका मैक्सिमम वर्कलोड ओरेकल क्लाउड पे चल रहा है, 21% जिनके कुछ वर्कलोड ओरेकल क्लाउड पे चल रहे हैं, 16% कुछ ऐसे हैं जो दे आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विद ओरेकल क्लाउड, एंड 9% द ऑर्गेनाइजेशन हु आर स्टिल प्लानिंग टू यूज ओरेकल क्लाउड। ऐसे ही VMware क्लाउड का है, VMware क्लाउड का 10% ऑर्गेनाइजेशन है, देयर मैक्सिमम वर्कलोड इज रनिंग ऑन VMware क्लाउड, 17% कुछ ऐसी हैं जिनके कुछ वर्कलोड VMware क्लाउड पे चल रहे हैं, 21% ऐसी कंपनीज हैं दे आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विद VMware क्लाउड, एंड देन 10% are the companies who are still experimenting to use VMware cloud. ठीक है जी। Let me clear the drawings. Let's move ahead.